और चलिए सीधी तस्वीरें इंदौर से, जहां पर दीक्षांत समारोह जारी है। मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। Reflects her unwavering commitment to the education. So thank you, Madhulika. Sorry to interrupt you. I am extremely honored and delighted to welcome all the dignitaries sitting on the dais on the occasion of the 6th convocation ceremony of Symbiosis University of Applied Sciences, Indore, which is India's first skill development university. आज का ये समारोह हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में एक खास स्थान रखता है, क्योंकि हमारे बीच एक युवा प्रेरणादायक व्यक्तित्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित है। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगी, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। उनका शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा में बहुत योगदान सराहनीय रहा है। इस दीक्षांत समारोह में माननीय श्री मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। वो एक दूरदर्शी नेता है जिन्होंने तो दीक्षांत समारोह से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर में एक खास कार्यक्रम सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह जारी है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की है। तो फॉर कमिंग ऑल द वे टू सिम्बॉयसिस टू गिव योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड आवर डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। उनके साथ ही माननीय मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट जी का भी मैं हार्दिक हृदय से स्वागत करती हूँ। उनके राजनीतिक अनुभव और योगदान से राज्य को एक प्रमुख स्थान मिला है। आई वेलकम यू सर। इट इज माई प्रोफाउंड ऑनर टू वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर भरत चरण सिंह, द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन, who has always been a pillar of support to all of us at Symbiosis. I also take it my privilege to welcome our respected members of the governing body, Board of Management, Board of Studies, and the members of our academic council. Dr. Ishwar Singh Chauhan, Mr. Satyendra Sharma, Mr. Dinesh Kumar Shukla, Mr. Ullas Bochre, Major Sonali Kadam, and Mr. Vikas Khatri, who are here present today. I am also honored to welcome the Collector and Commissioner of Indore, along with the members of Legislative Assembly and other dignitaries who are present here today. I also welcome the members of the press and media who have come to support us. Most importantly, I welcome our industry partners who are continuously mentoring our students for the Skill University initiative of Symbiosis. Dr. Vineet Nair, our Vice Chancellor, Brigadier Samantha, our Registrar, and the Controller of Examination, Dr. Manish. Sir, I'm extremely proud to also give my welcome to our Honorable Chancellor, Padma Bhushan Dr. S.B. Majumdar, sir, who unfortunately could not join in person, but who is watching this ceremony online. मुझे बताने में खुशी हो रही है कि ये समारोह लाइव टेलीकास्ट कर रहा है और हजारों बच्चे और पेरेंट्स आज इसको पूरे भारत में देख रहे हैं। Once again, my heartfelt welcome to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, the Honorable Water Resources Minister, the MPPURC Chairman, and all of us. Sir, without taking much time, I know you have a very busy schedule. I'm happy to inform you that this is India's first skill university, and we are participating in Honorable Prime Minister's Skill India mission and the Make in India initiative. Last year, Symbiosis celebrated its Golden Jubilee, and none other than the Honorable Prime Minister of India was the chief guest for the Golden Jubilee. I am happy to share with you that the Symbiosis Skills Universities have been ranked at NIRF number 1 this year in the country.
and we have collaborated with more than 20 international universities from Germany, from America, from France, and from Australia. I'm happy to share with you, sir, that this university, which was established in 2016 with the support and blessings of the former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, and with his blessings, we have been able to do excellent work in the area of skill-based education. Today, almost 250 students will be getting their degrees and diplomas at your auspicious hands. And I think we are very, very fortunate to have the dynamic and young Chief Minister of Madhya Pradesh amongst us. I am sure that this university will not only be India's #1, but also the world's #1 skill university in the years to come. Sir, I'm really happy and honored that all of you have accepted our invitation. And once again, I heartily thank you on behalf of our staff and students. Without much ado, and before ending my speech, I congratulate the graduating students and their parents who are embarking on a new journey of their lives. Children, God bless you. Remember always that Symbiosis is your alma mater, and we all teachers will be always happy to be a part of your journey. Do keep coming back to us and sharing your success stories. Least but not the last, I'm happy to share with you that today we have 83 girls who are obtaining free education from Symbiosis to do a diploma in manufacturing excellence with our industry partners, the Cotton Greaves Group, which is a multinational American company. And these girls will not only be obtaining their skill training in this university, but also on the facility of Greaves in Aurangabad and Pune. Our industry partners, I also thank you for coming here and supporting. Thank you all, and God bless you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. May I now request our Pro-Chancellor to kindly felicitate our Chief Guest, Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji. I request Vice Chancellor to felicitate the guest of honor, Cabinet Minister, Water Resources of Madhya Pradesh, respected Shri Tulsiram Silawat ji. May I request Vice Chancellor to felicitate the special guest, Chairman of MPPURC, Dr. Bharat Charan Singh ji. I would like to invite our Vice Chancellor, sir, to take us through the key developments and highlights of the past year to present the annual report of Symbiosis University of Applied Sciences. नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के छठे दीक्षांत समारोह में आपके समक्ष खड़ा हूं। आज हम न केवल हमारे स्नातकों की उपलब्धियों का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी की निरंतर वृद्धि और उपलब्धियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। हमें गर्व है कि इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, चेयरमैन एमपीपीयूआरसी और अन्य सम्मानीय अतिथि हमारे साथ हैं, जिनकी उपस्थिति इस दिन की महत्ता को और बढ़ाती है। वर्ष 2016 में स्थापित सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस भारत की प्रथम स्किल एजुकेशन बेस्ड यूनिवर्सिटी है। हमारे उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो छात्रों को प्रैक्टिकल स्किल्स प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान कर सकें। हम अपनी शिक्षा प्रणाली पर गर्व महसूस करते हैं, जो सिद्धात्मक अध्ययन को व्यावहारिक अनुभव के साथ संतुलित करती है।
हमारे पाठ्यक्रम का 70% हिस्सा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर केंद्रित है, जबकि 30% हिस्सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है और यह मॉडल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप भी है। इस मॉडल ने हमारे छात्रों को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, डेटा साइंस जैसे विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। हमारी यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और 100 से अधिक शिक्षकगण शैक्षणिक उत्कृष्टता और उद्योग अनुभव का संयोजन छात्रों को प्रदान करते हैं। हमारी आधुनिक कैंपस अत्याधुनिक शैक्षणिक भवनों, प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, उत्कृष्टता केंद्रों और छात्रों के लिए आरामदायक छात्रावासों से सुसज्जित है। इस वर्ष को हमने उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्ष बनाया है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने एलन यूनिवर्सिटी जर्मनी एंड इस्तांबुल गेटिक यूनिवर्सिटी तुर्की जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ 11 MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां स्किल इंडिया मिशन के तहत छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और सशक्त बनाती है। गत वर्ष हमारे शिक्षकों ने कई रिसर्च पेपर और बुक चैप्टर प्रकाशित किए और कई ने प्रमुख नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। हमारे छात्रों ने विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम एक्सेलरेट ने इंडियन कार्टिंग रेस में अपने इनोवेटिव गो कार्ट डिजाइन के लिए फ्यूचर अवार्ड जीता। हमारे छात्र ने 41st MP स्टेट योगा चैंपियनशिप, टाइम्स फ्रेश फेस सिटी फिनाले एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 जैसे आयोजनों में पुरस्कार प्राप्त किए। हमारे एक प्रतिभाशाली छात्र को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री द्वारा उनके इनोवेटिव वायरलेस रिमोट कंट्रोल प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया, जो मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के उद्देश्यों के अनुरूप है। साल भर हमारे कैंपस में ऊर्जा और उत्साह का माहौल रहा, जहां कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई। जहां एक और इंटरनेशनल योगा डे के जरिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया, वहीं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के उपलक्ष्य में एक आकर्षक ऑनलाइन क्विज सिम्बी ओलंपियाड्स आयोजित की गई। गणेशोत्सव और बसंत पंचमी जैसे सांस्कृतिक आयोजन ने हमारी सामूहिकता को और मजबूत किया। हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और 21st एम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने शैक्षणिक चर्चा और रिसर्च के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किए। मुझे ये इस वर्ष 80 से अधिक प्रमुख कंपनियों ने, जिनमें कैपजेमिनी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, TCS, HDFC एंड ICICI बैंक शामिल है, हमारी यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। इस वर्ष सबसे अधिक सैलरी पैकेज 14 लाख पर एनम जो हमारी यूनिवर्सिटी में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की प्रतिभा का प्रमाण है। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हम अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए स्किल बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम चला रहे हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क हैं। वर्तमान में इस पहल से लगभग 85 लड़कियां लाभान्वित हो रही हैं। हम निकट भविष्य में NAAC की मान्यता के लिए तैयार हो रहे हैं, जो गुणवत्ता शिक्षा और कौशल विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और प्रमाणित करेगा। अंत में हमारे सभी स्नातकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपके कठिन परिश्रम, संकल्प और उपलब्धियों ने आपको आज यहाँ तक पहुंचाया है। सिम्बियोसिस में आपका समय आपको इस कौशल, ज्ञान और मूल्यों से सुसज्जित करता है, जो बदलती हुई दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब आप भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो याद रखें कि आप केवल स्नातक ही नहीं हैं, अपितु एक नए और सशक्त भारत के अग्रदूत हैं। आप आत्मनिर्भर भारत की भावना को जारी रखेंगे और एक उज्जवल और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को बधाई। जय हिंद। Thank you so much, VC sir. Now we move towards the conferment of degrees. This year, approximately 250 students will be graduating from our university. I would request directors of respective schools to invite the Pro-Chancellor to confer the degrees. Director, School of Computer Science and Information Technology, Dr. Durgesh Mishra. Honorable Pro-Chancellor Madam, may I request you to confer degree of BTech in CSIT from the School of Computer Science and Information Technology. Director, School of Mechatronics, Dr. Ashish Khera. Honorable Pro-Chancellor Ma'am, may I request you to confer degrees of BTech in Mechatronics to students from the School of Mechatronics. Director, School of BFSI, Dr. Ajit Singh Tomar.
Honorable Pro Chancellor Ma'am, may I request you to confer the degrees of MBA, degrees of BBA and BCom from the School of Banking, Financial Services and Insurance Management. Director, School of Retail Management, Dr. Arpita Basak. Honorable Pro Chancellor Ma'am, may I request you to confer the degrees of MBA in Marketing and BBA in Retail Management and E-Commerce from School of Retail Management. Thank you. Honorable Pro Chancellor Ma'am, as a Director of School of Digital Media and Marketing, Professor Madhulika Chaudhary. Honorable, may I request you to confer the degrees of BBA in Digital Media and Marketing to the students from the School of Digital Media and Marketing. I request all the graduating students to rise and continue to remain standing while the Pro Chancellor Ma'am confer the degrees. Pro Chancellor Ma'am, may I request you to confer the degrees on all successful students who have passed the respective examination and who are present here today, and also to those who have been permitted to remain absent. In my capacity as Pro Chancellor of the University and the Chancellor's nominee for this convocation, I hereby confer the degrees on all successful students who are present here today and on those who have been permitted to remain absent. God bless you. Thank you, ma'am. All the students can take their seats now. Now we have reached the most awaited moment of awarding the outstanding students the Chancellor's Gold Medal and the Program Topper Awards. The awardees are requested to come onto the dais to receive the award after the announcement of the names. On behalf of members of governing body, may I request Honorable Chief Minister to present this year's Chancellor's Gold Medal and Program Topper Awards. May I request the dignitaries to please come forward? Here from here? Okay. So this year's Chancellor's Gold Medal for PG goes to Ms. Janvi Sabnani from MBA BFSI. Janvi Sabnani is currently working in RBL Finserv Limited as an assistant manager in Mumbai. She completed her BBA and MBA from Symbiosis University of Applied Sciences Indore, and she secured 9.3 CGPA in MBA. Chancellor's Gold Medal for UG goes to Ms. Niharika Sharma from BTech CSIT. Niharika Sharma is currently working as a software developer at Edgevantage Technologies. She is a part of a team that develops innovative and impactful solutions which helps in driving progress and delivering value. Now I would like to call upon program academic toppers, Ms. Komal Merwani, MBA Marketing, next is Ms. Janvi Sabnani from MBA BFSI, Ms. Niharika Sharma, BTech CSIT, Ms. Surbhi Tiwari, BBA Retail and E-Commerce Management, next we have Parv Dubey from BBA Digital Media and Marketing. As Parv is doing his masters from Ireland, I would request his mother to please come forward. No, she's not there. Okay. Mr. Vidhi Jain from BBA BFSI. Mr. Sarthak Patil from BCom Honours.
Thank you so much, sir, for doing the honors. Heartiest congratulations to all the awardees. सम्मानीय मुख्य अतिथि और हमारे प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इस भव्य अवसर पर हार्दिक स्वागत करके मुझे अपार हर्ष हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव एक दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक विकास की दिशा में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। उनका सपना है कि मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख निवेश स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने योजनाएं न केवल प्रगतिशील हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली भी हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धियां भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्राप्त की है जिसमें लॉ, मैनेजमेंट एवं डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियां हैं। 2020 से 2023 तक डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा में सुधार और नवाचार के माध्यम से युवा सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया है। उसके अलावा डॉक्टर यादव एक शिक्षाविद, लेखक और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भरपार ऐसे लग रहा है कि ये 10-20 साल ऐसा लगता है पुराने 100 साल पे भारी पड़ेंगे। कदम कदम पर दीक्षांत की आवश्यकता। पहले तो अर्निंग की बात करने के लिए हम किसी महाविद्यालय में आते थे, लेकिन अर्निंग के पहले लर्निंग, और लर्निंग में आपके जैसे कैंपस के जो आनंद है वो हम सबको याद दिलाते हैं कि भाई पेजर भी कितना भारी पड़ता है। ये हिजबुल्लाह के लोग बताते हैं कि पेजर तकनीकी रूप से दक्षता का इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा क्या? कहाँ उनने कब अपने मोबाइल छुड़वाए और किसकी दुनिया। ये इजराइल जैसा देश ने तकनीकी दक्षता का जो समय के साथ उदाहरण प्रस्तुत किया है, जोरदार होनहार इजराइल जैसे छोटे से देश के हम तो आज बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे किसी एक के लिए अभिनंदन करने में। लेकिन ये जो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के मैं दीक्षांत समारोह में उस भूमिका को जरूर लाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एक इतनी कठिन चुनौती आई थी कोविड की, लेकिन उस कोविड की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आपकी जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर समय सीमा में न केवल निदान निकाला गया बल्कि ये टीका तो इजाद किया ही किया है। देश और दुनिया के सामने चुनौती थी, ऐसे में भारत ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की और उससे बढ़कर के हिसाब किताब लगाने का कि 6 महीने में टीका लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने कौन सा क्या तरीका लगाया होगा, वो भी भारत जैसे देश में। मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापरते हैं, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यही समय है, सही समय है। ये जो समय हमारा है ये तकनीकी दक्षता का ही समय है। इसकी कीमत भी हमको मिलेगी, लेकिन कीमत से ज्यादा यश मिलने वाला है और यश भारत के माध्यम से मिल रहा है। मुझे जैसे बताया गया, मैं तो सिम्बायोसिस में आने में थोड़ा सा आज कठिनाई महसूस कर रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे, लेकिन बाकी को कट करके हमने कहा ये इस कैंपस में आना, यानी समय का सदुपयोग करना, मुझे इस बात का आनंद है। आपके बीच में आकर के अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो आपको गौरव मिला है, गर्व मिला है, ये जो आनंद का क्षण है, इसका एहसास 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, ये लंबे समय तक का है। और जब इसका महत्व तो तब होगा जब कागज की डिग्री या कॉलेज से डिग्री यूनिवर्सिटी के आधार पर आपको दी गई। ये हमारा शैक्षणिक काल वर्तमान की किताबी ज्ञान का पूरा हुआ, लेकिन ये जो वास्तव में शिक्षा से दीक्षा मतलब दीक्षांत, और दीक्षांत यानी हम अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद मनन और मनन के ऊपर चिंतन है। जब तक हम मनन और चिंतन की दिशा में नहीं जाते तो शिक्षण बेकार है। हमारे लिए परमात्मा की दया से अतीत के हजारों उदाहरण भरे पड़े, जब हमारे लिए कहने के लिए तो शिक्षण तो हर पूरा दुनिया के 200 से ज्यादा दे रहे हैं।
लेकिन शिक्षा की महत्ता किस देश में कहाँ फलीभूत हो रही, मुझे इस बात का आनंद है। आज बदलते दौर में कितने प्रकार से भारत में काम हो रहे हैं, वो कितने प्रकार से सोचा जा रहा है, तो इसमें आपकी महत्ता है। हम सब जानते हैं कि हम अपने इस एक अगर दो उदाहरण अगर आप सामने रखोगे तो याद, इजराइल की आबादी कितनी है, 1 करोड़ से भी कम है। और इजराइल आसपास के देशों की जो जिनसे लड़ाई चल रही है उनकी संख्या देखो, उनकी आबादी देखो तो ध्यान में आएगा। अकेले ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, 4.5 करोड़ से ज्यादा इराक की है। ऐसे जितने अरब के देशों की सबसे दुश्मनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कमोबेश इतने सारे देशों के बीच, और आज से नहीं, इजराइल अपनी लगभग 50 के दशक में वो आजाद हुआ है, तब से लेके आज वो अगर सारी चुनौतियों पे पार पाता है तो अपनी तकनीकी दक्षता के बलबूते पे पाता है। न तो वो अपने दुश्मन को माफ करता है, न अपने दुश्मन को भूलता है। ये तकनीकी दक्षता के बले पर भी कोई कल्पना करेगा कि वो अपने दुश्मन को अगर वो ईरान के राष्ट्रपति के भवन के अंदर जाकर मार दे तो आधे तो 90% ईरान वालों को भरोसा नहीं होता कि बाहर वाला मार गया, घर वाला मार गया। मार कैसे सकता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने प्राण ले लियो किसी की। सुरक्षा व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, उनकी सारे सिस्टम और सदियों से दुश्मनी है, लेकिन ये तकनीकी दक्षता ही परिणाम है। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। उदाहरण के लिए आप सबके बीच में 2-4 चीजें बोलूंगा, आपको ध्यान में आएगा। हम में से कई किसान परिवार के लोग बैठे, अभी अगर मैं सोयाबीन का आंकड़ा ले रहा था कि प्रति बीघा सोयाबीन हमारे मालवा सामान्य बड़े पैमाने पे, ये पटेल साहब बैठे। पटेल साहब 1 बीघा में कितना सोयाबीन होता है? 6 कुंटल। थोड़ा ज्यादा बोल दिया। एवरेज क्या आता है संजय भैया? 4। और इजराइल 1 बीघा में कितना लेता है? 30 कुंटल। अब अंदाज लगा लो। और वहां की बारिश और हमारी बारिश में कितना अंतर है? हमारे यहाँ की बारिश लगभग 30 इंच से तो एवरेज ऊपर ही होती कि नहीं होती? 32, 34, 40 तक चली जाती। लेकिन जिसके पास 7-8 इंच से ज्यादा पानी नहीं गिरता, अपना अंदाज लगा लो। एक गाय माता की दूध की कल्पना करो तो हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी गाय का दूध कितना आएगा? कितना आता नीचे? राजेश भैया है ना? और आप 30 लीटर निकालो एक टाइम का, 30 दूसरे पे जाओ। हमारे यहाँ दुनिया में इस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कौन सी दुनिया में हम रहे। और ये अपनी क्षमता योग्यता से बात करें, केवल आबादी के आंकड़े से बात करोगे 1 करोड़, और हमारे देश की कितनी आबादी है? कितनी है बताओ? 145 से लेकर 42, जितनी भी है। तो ये जो वर्तमान के दौर में 1 करोड़ इतने पे भारी है, हमारी स्थिति क्या होना चाहिए? लेकिन मैं लड़ने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन क्षमता योग्यता के बलबूते पर देश का सकारात्मक सोच तो बोल ही जाऊं। और ये किससे अपेक्षा है? ये आप ही से अपेक्षा है। ये जो वर्तमान के समय में तकनीकी रूप से दक्ष होते हुए, और जो मैं आपके कोर्स देख रहा था, वाकई में कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उससे बड़ी बात है, यहाँ मेरिट की कभी कमी नहीं रही। मेरिट में हमेशा इस देश के अंदर मेरिट वालों का तो अलग प्रकार का स्थान है, लेकिन मेरिट से बढ़कर के भी बात है। हमारे यहाँ मॉरलिटी ज्यादा बड़ी है, हमारे जीवन मूल्यों का ज्यादा महत्व है। कौरव पांडवों में दोनों एक ही द्रोणाचार्य के विद्यालय से निकले विद्यार्थी थे, कहीं दूसरे नहीं थे। एक जैसे ही राज परिवार के थे और एक जैसे में संख्यात्मक भारी तो कौरव ही थे, लेकिन दोनों अंतर कितना हुआ? बात का जीवन का परिणाम क्या रहा है कि जहां जीवन मूल्यों की बात आती तो पांडवों को हीरो की तरह देखते और विलियन अपने आप कौरव बन जाते। कर्ण का और अर्जुन का दोनों का उदाहरण अगर देखोगे तो कर्ण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं है, उसकी अपनी सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में, लेकिन केवल अपना मन और जिद और पीछे का वो छिपा हुआ प्रतिशोध का भाव वो योग्यता को भी नीचा कर देता है। और वो परिणाम एक बार नहीं, और उसके सामने हमने सबने देखा है। ऐसे उदाहरण एक नहीं, कई सारे उदाहरण हमारे हर काल हर युग में। राम के समय में क्या हुआ है? राम जी और रावण के समय में भी वही स्थिति है। रावण किसी प्रकार योग्यता में कम नहीं,
और तो और उसके तो कई मामले हैं जो आज भी उल्लेखनीय है। रण के कोई अकेला धनी हो सकता है ऐसा नहीं, मेरे अपनी लंका का हर व्यक्ति घर सोने का होना चाहिए। अभी तो कितना घोर आश्चर्य की बात, धन संपदा वैभव, उसका अपना परिवार की निष्ठा भी ऐसे कि पूरा परिवार कुर्बान हो गया, ये भी भाग्य की बात है। कोई खानदान में और मान के चलो कि ऐसा कोई लोग तो कहते, जानने वाले जानते हैं कि 10 होते हैं मनुष्य के जीवन में, जिसका पहला सुख निरोगी काया से लगा करके उसकी अपनी सारे सुखों की गणना करो, दुनिया आज तक जितने लोग हुए या जितने होने वाले हैं, ऐसे में 10 के 10 मिलने में अगर किसी को मिले तो वो एकमात्र रावण है, उसके अलावा किसी को सुख नहीं मिले। लेकिन जो दूसरी कमजोर पक्ष था वो आपके सबके सामने बताया। तो दीक्षा और शिक्षा में हमको इतना ही देखना है, शिक्षा से मिलती है, लेकिन शिक्षा के पीछे दीक्षा क्या कह रही है, और दीक्षा के आदर्श उदाहरण भी हमारे यहाँ है। हमारे अपने उदाहरणों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। मैं आज के अवसर पर लंबा न बोलते हुए सारे मित्रों को, जिन्हें आज अपनी क्षमता योग्यता से इस टेक्नोलॉजी के युग में टैलेंट के बलबूते पर सिम्बायोसिस में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, आज के इस विश्वविद्यालय के भी 6ठे दीक्षांत समारोह की मैं बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमको अपने परिवार, देश, समाज सबकी उपयोगिता, इसको विश्वास करते हुए देखना पड़ेगा। जो इजराइल का उदाहरण हम सब सामने देख रहे हैं, इजराइल ऐसा कर पा रहा तो क्यों कर पा रहा है, हमको उसका अतीत का थोड़ा सा उदाहरण हमारे सबके भी काम में आएगा। इजराइल की खुद की आबादी भले 1 करोड़ से कम है, लेकिन इजराइल के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन के सामने जो 90 लाख के आसपास लोग मरे, उनकी मरने की मौत का दृश्य अगर हम जर्मन में जाके देखेंगे, जिनको मरना है आज उनको अपना गड्ढा खुद खुदवा रहे हैं, और एक गड्ढे के नीचे जिनको कल मरना है तो 2 बगैर खोदे में सो रहे हैं कि हम पे डाल दो मिट्टी। ये तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत, ये जो मौत की कीमत जिनने चुकाई उसी में से मार्ग निकलता जीवन का। आज के इस अवसर पर ऐसे इतिहास के अतीत की घटनाओं से हमारे देश की अच्छाई को भी याद रखे, सच्चाई को भी याद रखे, और भूले नहीं हमारे इस देश संपन्नता को, व्यवस्थाओं को। लेकिन बगल का ये हमारा एक बिल्कुल जुड़ा हुआ देश, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ईरान जैसा देश जो हमारे अपने, क्या हुआ, पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहे कि अपना सियासी कटा पिटा है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, आज नहीं तो कल उसकी वापस क्या होगा हम सब निपट लेंगे। लेकिन बगल का ईरान, नादिर शाह कहां से आया था, भूलो मत, बगल के ईरान से आया था। हमारी कितनी सुव्यवस्था कर ले, कितनी धन संपदा वैभव बना ले, कितनी सारी व्यवस्था खड़ी कर ले, लेकिन अगर हम आप सब प्रकार का विचार करते हुए अपने आप को परिपूर्ण नहीं करेंगे तो अतीत के घटनाक्रम बहुत खराब है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी क्षमता के लिए जगा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपके प्रेरक और मार्गदर्शक शब्दों के लिए सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। As the convocation ceremony has come to an end, I request Raja to take the proceedings forward. May I request Pro Chancellor Ma'am to kindly declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Thank you so much, ma'am. Now, let us all rise for the national anthem. May I request everyone to please stand for the national anthem. तो ये तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां पर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के दीक्षांत समारोह में 6वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें जहां सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस का 6वां दीक्षांत समारोह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए हैं। तो मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल छात्रों को चिकित्सा शिक्षा मिलेगी। अस्पताल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। अब
रैंप की जो तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है, ये भूमि पूजन की तस्वीरें हैं। जब मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया तो अस्पताल में जनरल और सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधा है। 150 मेडिकल छात्रों को ये शिक्षा का मौका मिलेगा। मेडिसिटी एवं अलग अलग जगाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने, और देख सकते हैं एक एक जनता का पुष्प के साथ आत्मीय भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें इस समय उनके द्वारा किए जा रहे मध्य प्रदेश के विकास की जो गति है उसको निरंतर एक ऊंचाई दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ में समस्त हमारे गणमान्य व्यक्तित्व एक अलग मध्य प्रदेश की एक छवि जिन्होंने निर्मित की अपने नेतृत्व से। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं उज्जैन हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता के लिए जिन्होंने 592 करोड़ से ज्यादा की लागत की मेडिसिटी हॉस्पिटल का जिन्होंने आज भूमि पूजन की है। और नागरिक अभिनंदन उस भाव की अभिव्यक्ति है जो जनता के लिए ये सरकार, जनता के विकास, उत्थान, उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के उस नेतृत्व का है। और देख सकते हैं 70 अलग अलग संस्थाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कई आए हुए संस्थाएं आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और अब आदरपूर्वक आग्रह, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ, दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन में आदरपूर्वक आग्रह मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण से। यह मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप है। साथ ही साथ कन्या पूजन, देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, नारी सशक्तिकरण। और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय इन देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके और साथ में धनवंतरी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि करके माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी, माननीय समस्त सांसद ध्वज। और अब आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि आप निगम अध्यक्ष सम्मानित दीदी कलावती यादव जी से कि आप अपना मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व विकास की एक लौ जलाई है। आज मध्य प्रदेश को मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन को सौगात दी है 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से। और अब पल देवी स्वरूपा इन बेटियों के हमारे पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में खुशियां लाना, इनके जीवन में समृद्धि, नारी सशक्तिकरण, ये मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन बेटियों का पूजन करके, भारत की ये परंपरा है अपनी मातृशक्ति के प्रति। और अब आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मंच पे अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधि। बड़ी ही गौरव के पल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय। तालियां कमजोर है उज्जैन, दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यथास्थान ले चुके हैं। उज्जैन की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों के लिए आज एक गीत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन की जनता धन्यवाद
ज्ञापित करेगी। आइए वो गीत सुनते हैं। आशीष महाराज महाकाल का लेकर बल चलते हैं जो मागड़ काली का। विकास का एक सूरज अवंती में उगाया है, उजियारा उज्जैन का जग में फैलाया है। माटी के बेटे पर माटी करती है नाश, उज्जैन के हर दिल से आए बस यही तालियां बजाएं, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। दोनों हाथ उठाकर माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें इस गीत के साथ। मालवा की जो आन है अंचल की शान है, उम्मीद गरीबों की जो किसानों के मान है। मालवा की जो आन है अंचल की शान है, उम्मीद गरीबों की जो किसानों के मान है। व्यापार हो या पर्यटन, उद्योग या तीर्थाटन, जन कल्याण के लिए वो निकले सीना तार है। माटी को मामा ने ऐसे है परमार्थी, जन सेवा ही जीवन ऐसे है पुरुषार्थी। माटी के बेटे पर माटी करती है नाश, उज्जैन के हर दिल से आए बस यही आवाज। धन्यवाद धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद 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 मोहन जी, धन्यवाद। क्षिप्रा की शुद्धि का है संकल्प लिया, न्याय करे जैसे हो राजा विक्रमादित्य। हो क्षिप्रा की शुद्धि का है संकल्प लिया, न्याय करे जैसे हो राजा विक्रमादित्य। वैदिक काल गणना या मां क्षिप्रा परिक्रमा, देवों की भूमि का वैभव देख रही दुनिया। इतिहास अवंती का फिर वो दोहरा रहे, ज्ञान और शिक्षा का नया सवेरा ला रहे। माटी के बेटे पर माटी करती है नाश, उज्जैन के हर दिल से आए बस यही आवाज। धन्यवाद धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद धन्यवाद। वाकई में एक बार दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। पूरा उज्जैन हमारे यशस्वी इस संकल्प के साथ जिन्होंने आज 592 करोड़ से ज्यादा की लागत की मेडिसिन चिकित्सा महाविद्यालय का सौगात दिया है। अब पल आ चुका है नागरिक अभिनंदन। सबसे पहले माननीय उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, दीदी कलावती यादव जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी आदरणीय गौतम चेचवाल जी, दोनों हमारे सांसद वक्ष, जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला से नागरिक अभिनंदन इस भाव की अभिव्यक्ति है। आपके नेतृत्व ने मध्य प्रदेश का एक दिशा दशा बदला है। स्वास्थ्य के एक नए आज अध्याय की शुरुआत हुई है। ये नागरिक अभिनंदन अनिल जैन कालूहेड़ा जी, दीदी कलावती यादव जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी,
और सभी नागरिक उज्जैन की तरफ से यह अभिनंदन, जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। यह अभिनंदन उस विकास के उस भाव का है, यह अभिनंदन उस शिक्षा शक्ति का है जो जन कल्याण को समर्पित है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि माननीय अनिल जैन जी, माननीय दीदी कलावती यादव जी, एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन। मध्य प्रदेश और उज्जैन के विकास को एक गति दिया है आपके नेतृत्व ने। माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी उज्जैन की जनता की तरफ से, ये उज्जैन की जनता की तरफ से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करें। एक एक जनता सहभागी बने। एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत हुआ है आज का ये मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय। सुपर स्पेशलिटी की तमाम खूबियों को लेकर के आस पास के मालवा क्षेत्र में आम जन तक सहज सरल सुगम सुविधाएं पहुंचेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सांसद वत्स, माननीय समस्त विधायकगण, बड़ी खुशी के क्षण। एक नागरिक अभिनंदन, ये स्नेह का बंधन है आपके उस भाव का, विकास के उस अभिव्यक्ति का। नागरिक अभिनंदन इसी श्रृंखला में डॉक्टर कम्युनिटी और सभी चिकित्सा पदाधिकारी और अमलतास ग्रुप के हमारे बड़ी माला से सभी हमारे चिकित्सा पदाधिकारी सीएमएचओ सर के नेतृत्व में एक और इस समय जिला प्रशासन की तरफ से माननीय स्वास्थ्य विभाग और अमलतास ग्रुप के द्वारा एक बड़ी माला से नागरिक अभिनंदन और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब भेंट कर रहे हैं। आदरणीय दीदी कलावती यादव जी तिलक लगा करके भी आज के इस कार्यक्रम में उस भाव की अभिव्यक्ति है मध्य प्रदेश के विकास की जिन्होंने लौ जलाई है। और अब दूसरे नागरिक अभिनंदन के चरण में डॉक्टर कम्युनिटी, सीएमएचओ सर, अमलतास ग्रुप बड़ी माला से आदरणीय सुरेश सिंह भदौरिया सर सामने से जरूर थोड़ा सा स्पेस खाली करेंगे मीडिया कर्मियों के लिए। एक बड़ी माला से जोरदार तालियां सभी हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के माननीय पदाधिकारी, सभी संस्थाएं, चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी और अमलतास ग्रुप के पदाधिकारी एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। आप सभी लोग अब अपना यथास्थान ले लेंगे इस अभिनंदन पत्र और अभिनंदन के इससे 101 किलो की एक बड़ी माला से तालियां आपकी एक बार सहभागी बने उस विकास की भाव के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन। इस समय डॉक्टर कम्युनिटी, सीएमएचओ सर, सभी हमारे चिकित्सा के पदाधिकारी, अमलतास ग्रुप, एक भाव है मध्य प्रदेश के कल्याण का, एक भाव है आम जन के जीवन में खुशियां लाने का, एक भाव है मध्य प्रदेश के आम जन तक सरकारी कार्य पहुंचे। सभी लोग अपना यथास्थान ले ले। अब मेरा आग्रह है सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के इससे बहुत ही आत्मीय नागरिक अभिनंदन के बाद सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप यथास्थान ले लें और अब हम स्वागत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ आज मध्य प्रदेश को विकास की क्षितिज पे ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप सब। बहुत खुशी के क्षण हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आए और उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात कि जो सौगात मिल रही है मध्य प्रदेश को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और उसके पश्चात एक बार आपकी जोरदार तालियां बजे। अब श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और श्री राजेंद्र शुक्ल जी माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सबके लिए। तालियां आपकी सहभागी बने। एक बार पुनः श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह कि आप आए। श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्वागत करें। माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह, पुनः अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह कि आप आए और प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी का स्वागत करें। प्रभारी मंत्री जी का आप स्वागत करें। हमारे सांसद बच
आदरणीय श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के स्वागत के लिए श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी आए। बड़ी खुशी की बात। और एक बार पुनः अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह, श्री अनिल जैन फिरोजिया जी माननीय सांसद उज्जैन आलोट का आप स्वागत करें। और अब आग्रह स्वागत के इस क्रम को और शीघ्रता देते हुए सीएमएचओ सर से आग्रह है, श्री विधायक के सतीश मालवीय जी का स्वागत करें। माननीय विधायक घटिया, आदरणीय सीएमएचओ सर से आग्रह, आदरणीय विधायक सतीश मालवीय जी का स्वागत करें। साथ ही साथ सभी का स्वागत सीएमएचओ सर यथाशीघ्र कर ले। अनिल जैन कालूहेड़ा जी का, जितेंद्र पांड्या जी का, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, महेश परमार जी, दिनेश जैन बोस जी, मुकेश टेटवाल जी, श्रीमती कलावती यादव जी, विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, सभी विधायकगणों का समय कम है, हम एक ही साथ स्वागत कर रहे हैं। और बोले महाकाल महाराज की। आज का दिन उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए जोड़ के कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन को ये मेडी सिटी की कल्पना अगर किसी ने की है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के, वो है एकमात्र दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का आनंद है, परमात्मा की कृपा से। कभी कभी मेरे पूर्व वक्ता अनिल जी, दूसरे अनिल जी, सभी का मनोभाव यही है, कुछ कुछ कारण से अटकता गया मेडिकल कॉलेज, लेकिन आज ये जो मंच शोभायमान है, जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच के लिए। इस कार्यक्रम के साक्षी बंद हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र जी का भी। हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सुयोग्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनका भी जोरदार अभिनंदन करो। पूरा मंत्रालय आपके बीच में आया है। हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, जब से आए गौतम जी, हमारे लिए रोज दिन दूना रात चौगुना उज्जैन का विकास हो रहा है। इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद, जो खास तौर पर मेरी बात के आधार पर पता नहीं कहां दक्षिण भारत में थे, हमारे अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल फिरोजिया जी का। और दूसरे माननीय सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जोरदार अनिल जैन जी के लिए ताली वगैरह। और जो नाम बोल रहा हूं क्रमशः, हमारे सतीश मालवीय जी, जोरदार अभिनंदन सतीश जी का। जितेंद्र पंड्या जी का, बड़नगर विधायक, डॉक्टर तेज बहादुर जी का। इस अवसर अरुण भीमावत जी का, शाजापुर से हमारे माननीय विधायक। महापौर हमारे मुकेश टेटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी। इस अवसर पर जिला पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कहाँ है वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, डॉक्टर सनवर पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोर मुंडला जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सबका जोरदार अभिनंदन कर दो। यहां से वहां तक जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के हमारे सारे विधायक, पूर्व विधायक, सारे वरिष्ठ नेतागण। आज का दिन तो वाकई परमात्मा ने कुछ खास ही लिखा है, इतना खास कि लगातार पूरे साल, यद्यपि हमारे अपने कई कामों की सौगात पूरे प्रदेश में देने को मिल रही है, लेकिन भारत सरकार की योजना के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने में जो मजा आज के कार्यक्रम का आ रहा है, वो सारा कार्यक्रम एक तरफ और आज का कार्यक्रम एक तरफ। क्योंकि जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो उपलब्धि दी जा रही है, कितना अलग प्रकार का संयोग है, सुखद संयोग है। मैं राजेंद्र जी को बता रहा था, मैं जब पैदा नहीं हुआ उस समय से यहाँ के लोगों की आग थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उज्जैन 1965 के पहले 3 दिन बंद रहा। मैं पैदा बाद में हुआ, लेकिन वो आग थी जिस आग के आधार पर केवल उज्जैन ने ये मेडिकल सिटी और मेडिकल कॉलेज
सब मिलाकर के जो कंसेप्ट हुआ, परमात्मा की दया से आज हमारे हाथों ये हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ एक और जानकारी भी, ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं है, ना मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी अब ये पूरा क्षेत्र बन रहा है। अपना मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं है तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। हमें इस बात का आनंद है। और उसकी गति, उसकी रफ्तार देखो, लगभग 950 एकड़ जमीन जो वहां हमने रिजर्व की थी, जिसपे काम चल रहा था, 950 अब हमारी खत्म हो गई, फिर 950 नहीं एक बार करना पड़ रही है। ये है स्कोप, ये है भविष्य की संभावना। इस अपने आप में ये सारी कहानी कह देता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक जो भी चाह रहे हैं, यहां अगर हम ये इसी स्थान की बात कर रहे हैं तो इसी स्थान पर हाईटेक हेल्थ फैसिलिटीज से लेस ये होगी मेडिसिटी। लेकिन ये केवल अभी तो एक सिलसिला है। ये यहाँ जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो आनंद मनाओ, 592 करोड़ 30 लाख की लागत से आज हमने इसका भूमि पूजन किया है। ये आनंद की बात है। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी, जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जो इसकी खासियत है वो खासियत भी इसी प्रकार की है। हमारा समूचा कैंपस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर कॉलेज कहाँ, हॉस्टल कहाँ, रेसिडेंशियल ब्लॉक कहीं और अलग अलग जगह बनाए जाते थे। और ये एकमात्र ऐसा हमारा संस्थान रहेगा जहां पर 13 मंजिल से भी ऊपर वाली बिल्डिंगें बनेगी। ये जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक पूरा सिलसिला चालू होगा। ये हाई राइज के मतलब एक एक इंच जमीन का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए होना चाहिए और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जल्दी से जल्दी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, सारा स्टाफ, उसका रेसिडेंशियल कैंपस भी वही बने। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की फैकल्टी वो भी रुक सके। सभी प्रकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की सर्जरी या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की बीमारी का इलाज यहीं पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की दृष्टि से भी जिस नए क्षेत्र में जाना पड़ेगा उस सबके लिए पर्याप्त इंतजाम। और भाग्य की बात है, ये हमने अपनी इस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिटी के कैंपस को ये 1872 में स्थान चयन हुआ है। 1872 का पूरा ये चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाओं के लिए रिजर्व की गई लैंड। काल के प्रवाह में बाद में 1895 से हमारा पहला नजर अली मिल कैंपस बना इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के आधार पर अपने यहाँ पर। और 1895 के बाद बनते बनते विनोद मिल, बीमल मिल, हीरा मिल, ये तमाम जीनिंग प्रेस, ये सारे के सारे अपने औद्योगिक क्लस्टर का जो रूप बना था, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं ये मेडिकल सिटी आने वाले समय में, आज के स्तर पे भी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। अभी ये यहाँ का कैंपस तो पूरा होगा, लेकिन भविष्य की जितनी आवश्यकता है वो सारी लैंड भी अभी हमारे पास और रिजर्व है। ये मैं बताना चाहता हूं। आज अपने यहाँ पर जब हमारे संकल्प पत्र के आधार पे बात करते हैं, हमने कहा था कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। मेडिसिटी के नाम पर हमारे नए आयुर्वेदिक और मेडिकल कॉलेज पे हम पर्याप्त ध्यान देंगे। अगर अपन इसका हिसाब लगाए तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन में 1956 से लगाकर हमारे 2003-04 तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश की धरती पे थे। छठा रायपुर है, लेकिन वो रायपुर अलग हो गया था तब तक। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में मिले हैं। मुझे गर्व है हमारे विचारधारा की सरकार के बलबूते पर आज हमारे पास
17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ये हमारी अपनी इस विचारधारा की बात। और 17 वो और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, अर्थात 13 और 17 ये 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको और आधी बात बताई, आधी बताना बाकी है। हमारे पास लगभग 20 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, सरकार के साथ समाज का भी सहकार होना चाहिए। समाज और सरकार मिलजुल करके चिकित्सा सुविधा की सारी व्यवस्था बनाए। इसी आधार पर यह निर्णय किया गया। अर्थात अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमारे पास 5 से लेकर के 2024 तक हमारे पास ये सरकार के समय तक अभी 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर और सिवनी, जहां 100 मेडिकल की सीटें आई, इनको मिलाकर 17 मेडिकल कॉलेज आज हमारे वर्तमान में संचालित है। लेकिन 17 मेडिकल कॉलेज के आधार पर जो मैं बात कह रहा हूं, ये 12 मेडिकल कॉलेज अर्थात नए जुड़े, लेकिन एक ही साल में पीपीपी मॉडल पर 12 मेडिकल कॉलेज इसी महीने दिसंबर में हम उनका टेंडर फाइनल करके नए कॉलेज जोड़ने जा रहे हैं अगले साल की दृष्टि से। ये बड़ी सौगात है। 12 हमारे पास बन के तैयार हुए, लंबा समय चला गया, लेकिन आज के इस बदलते दौर में हमारे जो हॉस्पिटल है 400 क्षमता के, 300 क्षमता के, इन हॉस्पिटल को जोड़ करके मेडिकल की शिक्षा, यह बहुत मामूली बात, ऐसा होना चाहिए। हमारे लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सरकार हमारी बनी तो पहले 2 अलग अलग मंत्रालय थे, मेडिकल एजुकेशन अलग, सामान्य हमारा चिकित्सालय विभाग अलग, 2 मंत्री अलग अलग काम करते थे। आने के बाद हमने सबसे पहले काम ये किया, 2 अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, और एक बनाने का काम किया। और एक की जवाबदारी राजेंद्र हमारे शुक्ला जी को दी है, जो डिप्टी सीएम हमारे पास। हमारी सरकार के पैसे का एक एक उपयोग सदुपयोग में बदले, व्यवस्थाओं पे नियंत्रण हो और भविष्य में अच्छी छलांग लगा करके सरकार के माध्यम से सभी मंत्रालय काम करना चाहिए। इसलिए एक नहीं, कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस हेल्थ के सेक्टर में मैं बताना चाहूंगा, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। बड़े लोग, हम पहले कभी टीवी में देखते थे कि कोई मेडिकल का बीमार हो जाए तो उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराते, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस से ले जाते। हमारे पास इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। हमारे रीवा में तो 24 घंटे एयर एम्बुलेंस का अब काम होने लगा है, क्योंकि वहां नाइट लैंडिंग चालू हो गई। पहले वो केवल दिन में उड़ाते थे, अब 24 घंटे महाकौशल, विंध्य, क्योंकि वहां हमारे पास एक एक एयरपोर्ट है। इसलिए आज के जमाने में केवल एयरपोर्ट को हमारी व्यक्तिगत सुविधा के बजाय जीवन उपयोगी चीजों से जोड़ के चल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस में हेलीकॉप्टर, जहां हमारी हवाई अड्डा नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बचाना ये हमारी सरकार की जवाबदारी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी नक्सलाइट हमले में जो हमारा जवान घायल हुआ, कल की बात है, आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, एक गोली लगी, गोली लगने के आधार पर व्यक्ति घायल होकर के गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा, लेकिन 2 दिन में गोली नहीं निकाल पाए। कोई कारण हो सकता, गंभीर चिकित्सा की व्यवस्था है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों ने रिकमेंड किया कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। चुटकी बजाते हुए एयर एम्बुलेंस पहुंची, व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। यह अपनी सरकार की भावना है, 1 रुपया किसी का नहीं लग रहा, केवल आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से यह बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे द्वारा चिकित्सा के मामले में आज की स्थिति में लगभग प्राइवेट स्तर पर
2575 सीट हमारी ये 100 के 3 मेडिकल कॉलेज जोड़े तो हमारे पास मध्य प्रदेश के अपने बच्चों के लिए नीट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 2575 और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला ले तो 5000 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पे हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। और आने वाले इस सरकार के सत्र के साथ साथ हमने प्रयास किया है, आने वाले 2 साल में ये 10,000 तक ले जाएंगे सारे मेडिकल कॉलेज को पूरा करते हुए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी 13 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं और बचे हुए 7 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में चालू कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है, उज्जैन में अभी हमारे पास एलोपैथिक का कॉलेज चालू होने के लिए भूमि पूजन हुआ है। आयुर्वेदिक का प्रदेश का एम्स में होने वाला हमारा सबसे अच्छा संस्थान धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ है, हमारे इसी परिसर से बहुत आगे नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा जा चुका है और मेरी 2 मीटिंग हो गई है सांसद जी। भगवान चाहेगा तो 2025 में हम उस नए हमारा अपना जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय है, सारे के सारे विश्वविद्यालय, जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर चालू कराया, इसी प्रकार से हमने कहा है कि ये जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन कोर्स में रोजगार भी है, तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालय सब पैरामेडिकल और नर्सिंग के अपने अपने कॉलेज खोले। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि अधिकतर लोगों को नीचे तक लाभ मिले। इसी प्रकार से पैरामेडिकल और नर्सिंग की परीक्षाएं भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से होना चाहिए। अधिकांश जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और निर्णय हमने किया है, किसी भी हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस घायल को लेके आती है तो ये बड़ी सौगात मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाए और वो कोई कारण से, परमात्मा की लीला है, हमारे हाथ से हमारा मरीज निकल गया और ऐसे में बड़े खराब दृश्य बनते थे। व्यक्ति की शरीर, उसकी मट्टी, उसका शव लेकर के कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ठेले में ले जा रहा है, कोई गाड़ी में ले जा रहा है। शहर वाले तो ठीक है, गांव में बहुत दिक्कत थी। हमने निर्णय किया है हर व्यक्ति के लिए ऐसे कष्ट के समय सरकार दिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में संवाहन की व्यवस्था की है। हर व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार के द्वारा करने का फैसला लिया। ऐसे एक नहीं, मैं कई सारी बातें बता सकता हूँ। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं इसके माध्यम से अब दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये तो इतनी खराब बीमारी है, खासकर आदिवासी अंचल में सिकल सेल की बीमारी से भारी पैमाने पर कष्ट होता है, लेकिन इसका समूचा उन्मूलन करने का हमने निर्णय किया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के समय में खास करके जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ इसी मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ प्रबंधन किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है अपने आप में। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विदेश के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम जब महानगर की कल्पना कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलेगा, लेकिन ये नहीं, हमारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, सतना जोड़ करके भी एक तरह से महानगरों की कल्पना की गई। आने वाले 2047 तक जब देश का शतक पूरा होगा, अमृत काल पूरा होगा,
तो ये समूची सुविधाओं के आपस में एक दूसरे से तालमेल कराने के लिए हमने मेडिकल टूरिज्म के आधार पर भी इसी प्रकार की मेडिसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रयास किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर भी हमारे यहाँ पे केवल अपने देश वाले नहीं, केवल अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश में भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ एक कठिनाई है, सब कुछ इंश्योरेंस पे है, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने जाए हॉस्पिटल में तो बीमारी के लिए जांच के बाद ऑपरेशन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आगे तक नंबर लगते हैं। उनका ये प्रबंधन नहीं है, आज बीमारी मालूम पड़ी कल अपनी इलाज करा लो। ये व्यवस्था अगर कहीं है, ये भारत में जोरदार अभिनंदन करो माननीय हमारे सभी शिक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोगों के लिए ये इतना अच्छा प्रबंधन है। तो जब बीमारी कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, अगर वो उसके पास संसाधन है, वो अगर हमारे पास आकर लाभ ले सकता है तो हम क्यों लाभ नहीं देंगे? ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये वेद वाक्य खाली बोलने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई बीमार आए, कहीं से भी कोई कष्ट में आए, उसको अच्छा करके देने की ये हमारी लंबी परंपरा है। हम इस दोबारा भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई सरकार सक्रिय है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के रूप में अपनी रोल अदा करना चाह रही। अभी अनिल जी, मैं आपसे कुछ बातें छिपा रहा हूं, क्योंकि जो थाली में है उसकी बात करो, अभी जो नहीं है मालूम पड़ा थाली में सब्जी पूड़ी तो इसका आनंद लो। कल लड्डू वाफले मांग रहे हो वो भी मिलेंगे, चिंता मत करो, मालपुआ भी मिलेगा उसकी चिंता मत करो। आज का जो आनंद है, लेकिन फिर भी अब आपने कहा तो वहां से उठ कर आया अनिल जी, हमारे उज्जैन के अंदर लगभग 125 साल पहले, लेकिन सिंधिया महाराज ने तो उसका कारण लिया था, 125 से 150 साल पहले कलेक्टर कार्यालय, पहले सूबेदार कार्यालय के नाम से जाना जाता था, हमारा गोपाल मंदिर पे लगता था। बाद में उसको शिफ्ट किया कोठी पैलेस पे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतने दूर उस समय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां जब वो कार्यालय स्थापित किया। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्रीगणों को बताना चाहूंगा, आज की स्थिति कैसी है कि हमारे यहाँ वो उस समय केवल जिला कार्यालय था, जब संभाग कार्यालय होगा और बड़े बड़े कार्यालय आ गए। अब आईजी अपने घर से कार्यालय चला रहा है क्योंकि जगह नहीं है, डीआईजी यातायात थाने से कार्यालय चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है, कलेक्टर 2.5 किलोमीटर दूर बैठते हैं, एसपी फ्रीगंज में बैठते हैं, ये जो अलग अलग बैठते हैं। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, जब धर्मस्व का संचालनालय भोपाल से चल करके वो भी उज्जैन में आ गया है, पूरे प्रदेश के धर्म स्थानों के लिए भी अगर प्रबंधन करने की व्यवस्था रहेगी तो उज्जैन में रहेगी। ऐसे में हमने योजना बनाई है, फ्रीगंज के अंदर हमारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुराना माधवनगर थाने वाली जगह पर नया कलेक्टर कार्यालय बनाने वाले हैं। इसके संबंध में सारी प्रोसेस कर दी है। हमारा 150 साल लगता है एवरेज रूप से तो पूरे शहर में आने का कलेक्टर कार्यालय का, लेकिन इन सारी सौगातों के पीछे बहुत सारी बात है। एक बार में मत वसूलो, अब आप पधारो, मेरे को दूसरी बात भी करना है। आज के इस अवसर पर चूंकि ठंड का टाइम है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी बातें रख रहा हूं। लेकिन ये बात हमारे को याद है कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का कॉलेज है, एलोपैथिक का कॉलेज है, ये डॉक्टर तेज बहादुर होम्योपैथिक के कॉलेज वाले, इनका आग्रह है कि वो भी आना चाहिए उज्जैन में। मेडिसिटी बना रहो तो मैं यही घोषणा करता हूं, हमारा होम्योपैथिक कॉलेज भी उज्जैन में खोला जाएगा। इसके दृष्टि से ये मेडिसिटी का ही पार्ट है। डॉक्टर साहब, मैं ये बात करके अलग से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जोड़ करके उज्जैन में हमारा इस प्रकार से ये बड़ा काम होगा। आज मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता था,
लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आने वाले समय में हम सब जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, इसलिए आज अपनी ये जो सुविधा दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे विभाग के मंत्री जी ने कहा है कि सिम्हस्थ 2028 में, लेकिन ये प्रयास रहेगा किसी भी हालत में सिम्हस्थ के पहले ये पूरा कैंपस बनकर के चलायमान हो जाए। इस संकल्प के साथ एक बार फिर इस पूरी सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से आपने एक बड़ी सौगात, जोरदार तालियां बजाए। एक दूरदर्शी नवाचार उन्मुख मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं। अब हित लाभ वितरण के लिए सबसे पहले हमारे 3 हितग्राही हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसर यानी स्वच्छ भारत मिशन से श्रीमती मंजू मुकेश, अंजना और तेजकरण जालम भगवान जी यथाशीघ्र आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें 4.84 बात करें कि लागत का ये चेक भेंट कर रहे हैं। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साथ में नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सभी गणमान्य व्यक्तित्व ये हैं इस समय। श्रीमती मंजू मुकेश, अंजना जी, जिनको इस समय सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 4.84 का इस समय चेक प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद इस समय श्री दीपक शर्मा जी, जो कि व्यक्तिगत शौचालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का माननीय मुख्यमंत्री जी हर देश के हर कोने में प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसको जमीनी हकीकत दे रहे हैं। श्री दीपक शर्मा जी को व्यक्तिगत शौचालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं इस समय बहुत गौरव की बात। और अब तीसरा हमारे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये ध्येय है। और बेबी बाई, हमारी दीदी बेबी बाई आ जाए उज्जैन नगर पालिक निगम से दक्षिण पश्चिम विधानसभा की ये दीदी बेबी बाई को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इस समय आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा के तौर पे ये 3 अलग अलग हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की। आज मध्य प्रदेश स्वर्णिम, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ बाबा महाकाल की उस पावन धरती को सौगात मिली है मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय की। फिलहाल हृदयपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब बहुत आभारी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, श्री गौतम टेटवाल जी का,